Good morning to all of you. So in previous video lecture, we have seen about the type of charges, positive charges as well as negative charges, and we have also seen about quantization of charge, that how much charge, how much electron does each coulomb of charge contain, and we have also found that each coulomb of charge means in 1 coulomb of charge there is 6.25 into 10 to power 18 electron. 6.25 into 10 to power 18 electron. After that we have discussed about conductor and insulator. Conductors allow electricity to pass through them, whereas insulator does not allow the electricity to pass through them. And the reason is, in the case of conductor, when we are saying about the conductor, in the conductor there is free electron, but in the case of insulator there is no free electron. So free electron is responsible for the conduction of current, and in the insulator, since there is no free electron, so that's why the current does not pass through insulator. Now today we will talk about electric potential and potential difference. Okay. So today we will talk about two topics: electric potential and potential difference. It is very much important, so please pay more and more attention towards the topic electric potential and potential difference. Okay, that what do we mean by electric potential, what do we mean by potential difference. So before moving to them, what is electric potential, हम लोग इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता क्या है. सो वी विल टेक अ चार्ज. आप जानते हो कि जहां पे भी एक चार्ज होता है उसके अराउंड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड. उसके अराउंड क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन, और वी कैन से अ एरिया और अ बाउंड्री. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन, अ एरिया or a boundary where a charged particles experience a force. Where a charged particle experience a force. तो अगर हम लोग सपोज करो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा चार्ज हम लोग का, जिसको हम लोग बोल देंगे टेस्ट चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज, जो कि कहाँ पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको आप समझिएगा. Work done in bringing a unit positive charge. Work done in bringing a unit positive charge from infinite to a point inside the electric field. अभी देखिए ये चार्ज कहाँ पे है, सिंस ये चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत दूर है, तो इस चार्ज को हम लोग बोलेंगे कि इसके लिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये चार्ज कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है. ये चार्ज कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है. तो अब हम लोग को इसको कहां पे लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है. तो जब हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे, जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएंगे तो उसके लिए हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. तो दैट इज ओनली वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वो वर्क जो हम लोग कर रहे हैं, एक चार्ज को इनफाइनाइट से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में, दैट इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड विद V, एंड द फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू W अपॉन Q. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? V इज इक्वल टू W अपॉन Q. ओके, इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाउ मच work
is done in moving a charge of 2 coulomb, in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 वोल्ट। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को दे दिया गया है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 coulomb फ्रॉम अ पॉइंट एट 118 वोल्ट टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। ये क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन समझे हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? Work done in moving a charged particle. Work done in moving a charged particle from one point to another point. Work done in moving a charged particle from one point to another point inside the electric field. Okay? Means potential, electric potential एक तरीके से क्या आपकी कैपेसिटी। What is electric potential? कैपेसिटी। सपोज कीजिए कि कोई वायर है और उसके एक एंड पे जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है और दूसरे एंड पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है? 7 वोल्ट है। तो इस एंड पे जो ए एंड है, सपोज कीजिए बी एंड है, तो ए एंड की कैपेसिटी कितनी है? 5 वोल्ट। बी एंड की कैपेसिटी कितनी है? 7 वोल्ट। ओके, तो ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एंड का 5 वोल्ट, बी एंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? 7 वोल्ट। लेकिन कोई पूछे व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? What is the potential difference? So 7 minus 5, how much? It will be 2 volt. What will be the potential difference? 7 minus 5, that is 2 volt. तो अब हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि how much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 volt. तो अब देखिए what is given that in the question. Q is given as 2 coulomb and potential difference V is equal to 128 minus 118, that is 10 volt. We know that W is equal to V upon Q. So V is equal to W upon Q. So W is equal to V into Q. V is how much? 10. And Q is 2. Then the answer will be how much? 20 joule. So how much amount of work is done? 20 joule. 20 joule. Work is done in moving a charge of how much coulomb? 2 coulomb. कितने coulomb का चार्ज है? 2 coulomb का चार्ज को एक पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 118 है और दूसरा पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 128। तो हम लोग इस क्वेश्चन से भी इजीली समझ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। एक चार्ज को एक ऐसे पॉइंट से जहां पे पोटेंशियल 118 वोल्ट है, वहां से उस चार्ज को कहां लेके जा रहे हैं जहां पे पोटेंशियल 128 वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। And what is electric potential? Work done in bringing a charged particle from infinite to point inside the electric field. तो ये तो 2 पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया। What do we mean by electric potential and what is electric potential difference? Now, current. What is current? Rate of flow of charge. What is current? Rate of flow of charge, or flow of charge with respect to time.
So current is what? Rate of flow of charge, and this current is denoted with I. Current is denoted with I. So what is the formula for this? I is equal to Q upon T. I का 2 नहीं. It is not I का 2. It is I is equal to Q upon T. And what is Ti? Current, charge, and T is what? Time. T is what? Time. So I is equal to Q upon T. That is the formula of current. So if we have to define 1 ampere, since current की unit क्या होती है? Ampere. So if we have to define 1 ampere, so what is 1 ampere? 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. If a charge of 1 coulomb flows through a wire in how many seconds? 1 second. Then it is said to be how much ampere? 1 ampere. तो अगर बहुत बार एग्जाम में आता है डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 एम्पियर, तो अगर 1 एम्पियर है तो कूलॉम को भी कितना बना देंगे? सिंस आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो क्यू अगर 1 कूलॉम होगा और टाइम अगर 1 सेकेंड होगा, देन इट विल बी 1 एम्पियर. ओके, सो दैट इज द डिफिनेशन ऑफ करंट. ये डिफिनेशन किसकी होगी? हम लोग की, और करंट की हम लोग की डिफिनेशन होगी. अब अगर सपोज कीजिए इसी के ऊपर हम लोग को अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द सर्किट. ओके, व्हाट इज द सर्किट? हम लोग छोटे क्लास में भी पढ़ चुके हैं. अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ. व्हाट इज सर्किट? अ क्लोज कंडक्टिंग पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्किट बोलते हैं. ओके, क्लोज कंडक्टिंग पाथ को हम लोग क्या कहते हैं? सर्किट बोलते हैं. तो अब हम लोग एक सर्किट के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जानेंगे कि करंट एक्चुअली जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है क्या होती है. तो अब हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और ऑल द थिंग्स वी विल स्टडी. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट टिल द टॉपिक व्हाट आई हैव टॉट टू यू, so please you can WhatsApp me that sir this is the doubt. And second thing, make the notes lecture wise, because I am going very much slowly. That today I have covered 2 topics. One is electric potential and second is potential difference. Okay, potential difference के बारे में हमने आपको बताया है कि work done in moving a charge from one point to another point inside the electric field. अब इसी पोटेंशियल डिफरेंस को लेते हुए जब नेक्स्ट क्लास में हम आपको इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ाएंगे तो इस पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत ज्यादा यूज है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस वर्क क्या प्ले करता है. पोटेंशियल डिफरेंस वर्क क्या प्ले करता है कि सपोज एक एंड हमारा ए है, एक एंड हमारा बी है, दोनों एंड पे पोटेंशियल कितना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0 वोल्ट. दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 0 वोल्ट. अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट हो गया तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ करंट. करंट प्रोड्यूस होगा ही नहीं. सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करंट व्हाट इज देयर? देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. सपोज करो कि अब पोटेंशियल डिफरेंस एक तरफ 0 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट हो गया, देन द डिफरेंस इज हाउ मच? 5 वोल्ट. मीन्स व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? 5 वोल्ट. जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो और कहते हैं गिव मी अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट, मीन्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? पोटेंशियल डिफरेंस. आप उस दुकानदार से एक ऐसी बैटरी मांग रहे हो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट है. तो इस पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत ज्यादा यूज है. जब हम लोग कल सर्किट बनाएंगे उसके अंदर जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत ज्यादा यूज है और ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे वर्क करता है. पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा. बिकॉज व्हाट इज करंट? नथिंग. करंट तो कुछ भी नहीं है. इट इज अ नेम विच इज गिवन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट इज अ नेम विच इज गिवन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. So all about the circuit we will talk in the next class. Thank you. God bless you.